اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور یہاں لندن کی گھڑیوں میں سہ پہر کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ اتوار 24 مئی کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک بڑا معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے، جس کی حتمی تفصیلات اس وقت زیر غور ہیں اور جلد اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں دنیا کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ معاملہ ابھی مکمل طور پر حتمی نہیں ہوا۔ And I'll leave it to the President to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب خوفناک دھماکہ، سرکاری اہلکاروں کو لے جانے والی ٹرین کی بوگیاں اور متعدد گاڑیاں تباہ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 20 افراد جاں بحق، جبکہ 70 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قریب امریکی سیکرٹ سروس اہلکاروں پر فائرنگ کا واقعہ، سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مشتبہ حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ بھی وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ Republican support on Capitol Hill is weakening. گوگل گلاس کی ناکامی کے بعد ایک اور کوشش، جانیے اس بار گوگل کے سمارٹ چشموں میں کیا مختلف ہے۔ With glasses, you can allow maps to further understand your context and what's in front of you. So you get detailed directions like the coffee shop is coming up on your right. سنیے دی گریٹ گاما، ایک ناقابل شکست پہلوان کی کہانی جو دن میں 6 مرغے کھاتا اور 15 گھنٹے ورزش کرتا۔ وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات بھی آج کے سیربین میں شامل ہے۔ حبیب جالب کے جس کے لیے ایوب خان سے نواز شریف تک ہر کسی کا خواب رہا کہ یا تو یہ کمبخت چپ ہو جائے یا بک جائے یا پھر مر جائے، پر جالب نہ چپ ہوا نہ فروخت ہوا بھی تو مرنے کے بعد۔ جانیے لندن کی ایک مسجد میں تعینات امام مسجد نے بدروحوں سے نجات کے لیے علاج کے نام پر کس طرح برسوں تک کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال کیا۔ مشرقی لندن کی ایک مسجد میں تعینات امام مسجد عبدالحلیم خان کم عمر لڑکیوں اور ان کے والدین سے کہا کرتے تھے کہ انہیں بدروحوں سے نجات کے لیے علاج کی ضرورت ہے، اور علاج کے نام پر لڑکیوں پر جنسی حملوں کے بعد وہ انہیں خبردار کرتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو علاج کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں اور تجزیے بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے، تاہم اس کی حتمی منظوری امریکہ، ایران اور دیگر متعلقہ ممالک کے درمیان ہونا باقی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطی اور خطے کے متعدد رہنماؤں کے ساتھ ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں ایران سے متعلق ایک ممکنہ امن معاہدے سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس سے کی گئی اس گفتگو میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، ترکی، مصر، اردن اور بحرین کے رہنما شامل تھے۔ ان کے مطابق اس بات چیت کا محور ایران اور ایک مجوزہ مفاہمتی یادداشت یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، جو امن کے قیام سے متعلق ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے بھی علیحدہ طور پر بات چیت ہوئی ہے، جسے انہوں نے مثبت قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق معاہدے کی حتمی تفصیلات اس وقت زیر غور ہیں اور جلد اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس کے تحت آبنائے ہرمز کو بھی کھول دیا جائے گا، جو عالمی تجارت کے لیے ایک نہایت اہم بحری راستہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مذاکرات میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہیں اور امکان ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں دنیا کو ایک اچھی خبر ملے، تاہم ان کے بقول یہ کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہوگی۔ Further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Ultimately, I remind everybody, and I think this ties into the second question that was asked with relations to it. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon.
इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि ये मुमकिन पेशरफ्त आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते में कशीदगी कम करने के अमल से मुतालिक हो सकती है, जो बिलाखिर उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को देखना चाहते हैं, यानी ऐसी दुनिया जहां ईरान के जौहरी हथियारों के खदशात मौजूद ना हो। To destroy commercial vessels using an international waterway. That is illegal under any concept of international law that governs us, but it's also if we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent that could be replicated here in this region and in multiple places around the world. So the desire the president has, his preference, is to find a diplomatic way that these problems can be solved. That's always the president's preference. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन मामलात अभी तक किसी हतमी मरहले तक नहीं पहुंचे। उनके अल्फाज में अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन हतमी पेशरफ्त नहीं हुई। मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम उस वक्त तक तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के सदर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को भी खास तौर पर मौजू बनाया और कहा कि ये एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है, ईरान इसका मालिक नहीं, और बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए इस रास्ते की आज़ादाना नक्लो हरकत बरकरार रहनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हालिया पेशरफ्त के नतीजे में न सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के हवाले से बाज़ रुकावटें दूर हो सकती हैं, बल्कि उन बुनियादी मामलात पर भी बात आगे बढ़ी है जो माजी में ईरान के जौहरी अज़ाइम से जोड़े जाते रहे हैं। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि किसी भी मुमकिन पेशरफ्त के लिए ईरान की मंजूरी, तामील और बातज़ा अमली इक़दामात ज़रूरी होंगे। मार्को रूबियो के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम एक पेचीदा और तकनीकी मामला है, इसलिए इसके तमाम नुकात तय होने और उन पर अमल दरामद में वक्त लग सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू से मजमूई तौर पर यह तासुर सामने आया कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त ज़रूर हुई है, मगर अभी किसी हतमी मुआहदे या नतीजे का ऐलान कबल वक्त होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का इशारा दिया है। पोस्ट में उन्होंने बताया कि आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के रहनुमाओं की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जो खित्ते में अमन, इस्तेकाम और जल्द सिफारती हल के मुश्तरका मकसद की जानिब एक अहम कदम की निशानदेही करती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि हम सदर ट्रंप की क़यादत और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए उनके अज़म को सराहते हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि कौमी सलामती से मुतल्लिक़ कोई भी फैसला मुल्क की आला क़यादत की मंजूरी के बगैर नहीं किया जाता। सरकारी नशरियाती इदारे के मुदीरान से मुलाकात के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि कौमी सलामती कौंसिल के दायरे कार से बाहर और रहबर आला की मंजूरी और रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब सिफारतकारी के मैदान में कोई फैसला किया जाए तो तमाम इदारे, सियासी धड़े और कौमी प्लेटफॉर्म्स इसकी हिमायत करें, ताकि दुनिया तक इस्लामी जमहूरिया ईरान की एक मुत्तहिद और मुस्तहकम आवाज़ पहुँचे। ईरानी सदर ने सरकारी मीडिया से मुतालबा किया कि वो समाजी हम आहंगी के फ़रोग़, निज़ाम के अहम फैसलों की हिमायत और अवामी एतमाद बढ़ाने में ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करें। सदर पेज़ेश्कियान का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरानी पार्लिमान के रुकन कामरान गज़नफ़री ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया था कि ईरानी सदर ने मुबैना जंग बंदी से मुतल्लिक़ फ़ैसला रहबर आला की इजाज़त के बगैर कबूल किया है। उधर ईरान के नीम सरकारी खबरसा इदारे तस्नीम ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुबैना इब्तिदाई मुआहदे से मुतल्लिक़ मज़ीद तफसीलात जारी करते हुए दावा किया है कि मौजूदा मसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कोई यकीन दहानी शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने किसी जौहरी मवाद की हवालगी या मुंतकली से मुतल्लिक़ कोई वादा नहीं किया। तस्नीम के मुताबिक जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर जंगी कशीदगी के खात्मे के बाद तक मौखर किए जा सकते हैं और मौजूदा मसवदा सिर्फ जंग के खात्मे और कशीदगी कम करने के फ्रेमवर्क तक महदूद है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हालिया सिफारती राब्तों के बारे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी गुज़िश्ता 48 घंटों में अहम मगर गैर हतमी पेशरफ्त की बात कर चुके हैं, जिससे खित्ते की सूरत हाल पर आलमी तवज्जो मज़ीद बढ़ गई है।
इसी दौरान अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने इस बारे में खबर दी कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे में 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी, आबनाए हुर्मुज की बहाली और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने से मुतल्लिक नुकात शामिल हैं। एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से एक्सियोस ने खबर दी है कि मुआहदे में दर्ज झेल नुकात शामिल हैं। इस अरसे के दौरान आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलना, किसी किस्म का टोल टैक्स आयद ना करना और ईरान की जानिब से समंदरी बारूदी सुरंगें साफ करने पर आमादगी। अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करना और ईरानी तेल पर पास पाबंदियों में नरमी देना। ईरान की तरफ से जौहरी हथियार ना बनाने और यूरेनियम अफसूदगी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए इब्तिदाई यकीन दहानियां। अमेरिका की जानिब से पाबंदियां खत्म करने और ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने पर मुज़ाकरात। 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान अमरीकी अफवाज का खित्ते में मौजूद रहना, जबकि हतमी मुआहदे के बाद ही इनखला किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बाहमी रजामंदी से इस मुआहदे में 60 दिन से जायद तोसी भी की जा सकती है। ताहम BBC इन इतलात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर सका। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी 2 अमरीकी अहदेदारों के हवाले से रिपोर्ट किया कि इस तजवीज़ में तेहरान की जानिब से इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क करने का इंदिया भी दिया गया है। ताहम ईरान के नीम सरकारी खबर रसा इदारे तस्नीम ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुबैना मुआहदे की मज़ीद तफसीलात जारी की हैं, जिनमें यह बात सामने आई है कि अमेरिका के साथ इब्तिदाई मुआहदे में ईरान की जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई यकीन दहानी शामिल नहीं है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में चमन फाटक के करीब एक जोरदार धमाके में कम से कम 20 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में खवातीन, बच्चे और सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। इतलात के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब कोयटा कैंट से सिटी रेलवे स्टेशन जाने वाली चमन फाटक के करीब पहुंची। ये ट्रेन उन मुसाफिरों को लेकर जा रही थी जिन्होंने बाद अज़ां पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में सवार होना था। हुकाम के मुताबिक इन मुसाफिरों में बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकारों की थी, जो ईद की छुट्टियों के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे थे। ये ट्रेन की वो बोगियां हैं जो कि आज सुबह कोयटा में बम धमाके की जद में आ गईं। वफाकी वजीर रेलवेज अनीफ अब्बासी के मुताबिक ये बोगियां एक शटल सर्विस का हिस्सा थी और ये शटल सर्विस कोयटा कैंट से रेलवे स्टेशन जा रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब ये शटल सर्विस चमन फाटक के करीब पहुंची तो इसके करीब एक जोरदार धमाका हुआ। ये फकीराबाद है, ये सुबह ट्रेन जा रही थी तो ये धमाका हुआ ट्रेन पे। धमाका इतना जोरदार था कि इसके नतीजे में शटल सर्विस की तीनों बोगियां पटड़ी से उतर गईं और इनमें से 2 को शदीद नुकसान पहुंचा और जो ज़्यादातर लोग हलाक और ज़ख्मी हुए सरकारी हुकाम के मुताबिक वो इन्हीं 2 बोगियों में सवार थे। जिस मुकाम पे धमाका हुआ उसके कुर्ब जवार में जो घर थे उनकी भी बड़ी तादाद को इस धमाके की वजह से नुकसान पहुंचा है और इसमें भी बहुत सारे लोग हलाक और ज़ख्मी हुए। इसके साथ साथ इन घरों के करीब कड़ी 2 दर्जन से ज़ायद गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ये मेरा घर है, सुबह हम सोए हुए थे, 8 बजे के टाइम ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद ये सारी हालात आप लोग देख सकते हैं। हमारा घर, आसपास हमसाए हैं, सबके घर है और गाड़ियाँ वगैरह जल चुकी हैं। हुकूमत बलूचिस्तान के एक एलामिया में दावा किया गया है कि इस धमाके में कम से कम 14 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। इन जख्मियों में से एक बड़ी तादाद की हालत नाजुक है, जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद में इजाफे के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस धमाके की जिम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम BLA ने कबूल की है। रेलवे के हुकाम के मुताबिक इस शटल सर्विस को रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस का हिस्सा बनना था। बलूचिस्तान में हालात की खराबी के बाद से जाफर एक्सप्रेस को मुतअद्दिद बार हमलों का निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस को नामालूम मुसल्लह अफराद ने हाईजैक किया, जबकि इससे कबल नवंबर 2024 में इसके मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन कोयटा पर एक खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। चूंकि ईद उल अज़हा करीब है, लोगों की एक बड़ी तादाद अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए कोयटा शहर से बाहर जाती है, जिसके बायस रेलवे स्टेशन और जो बस अड्डे हैं उन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज भुगटी ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि इसके जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज ने तस्दीक की है कि शनिचर की शाम वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाले एक शख्स को जवाबी कार्रवाई में गोली मार दी गई है। बाद अज़ां अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर इसे मुर्दा करार दे दिया गया।
सीक्रेट सर्विस के मुताबिक वाकया शाम 6 बजे के बाद 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के इलाके में पेश आया, जब एक शख्स ने अपने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। बयान के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुश्तबा शख्स हलाक हो गया। फायरिंग के दौरान एक राहगीर भी जख्मी हुआ, जबकि सीक्रेट सर्विस के किसी एहलकार के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। वाक़े के वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फायरिंग के फौरन बाद व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में मौजूद साफियों को इमारत के अंदर मुंतकिल कर दिया गया और सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। उधर जराये ने अमेरिकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज को बताया है कि वाक़े के दौरान 15 से 30 के दरमियान गोलियां चलाई गईं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक एक ही मुसल्लह शख्स सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के करीब आया और मुबैना तौर पर उन पर फायरिंग की कोशिश की, जिसके बाद एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। ताहाल हुकाम की जानिब से हमलावर की शिनाख्त या मुमकिना मुहर्रकात के बारे में तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्मार्ट चश्मों की दौड़ तेज हो गई है और एक दहाई कबल अपनी नाकाम कोशिश के बाद गूगल एक बार फिर इस मैदान में वापसी कर रहा है। गूगल ने अपनी सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस में नए स्मार्ट चश्मों की रुनमाई की है, जो रवां साल मौसम सरमा में फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। इन चश्मों के फ्रेम में छोटा कैमरा और बाजुओं में स्पीकर्स नस्ब होंगे, जबकि सारिफ इनके जरिए गूगल के मसनूई ज़हानत के निज़ाम जेमिनी से बराह रास्त गुफ्तगू कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक ये चश्मे एंड्रॉयड और एप्पल दोनों डिवाइसेस के साथ काम करेंगे। गूगल के एग्जीक्यूटिव शाहराम इजादी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये स्मार्ट चश्मे सारिफ को हाथ आज़ाद और सर बुलंद रखने में मदद देंगे, क्योंकि मसनूई ज़हानत स्क्रीन के बजाय बराह रास्त कान में जवाब देगी। गूगल के मुताबिक फिलहाल 2 डिजाइन सामने आए हैं, जिनमें एक वारबी पार्कर और दूसरा जेंटल मॉन्स्टर के इश्तराक से तैयार किया गया है। ये गूगल की दूसरी बड़ी कोशिश है। इससे कबल गूगल ग्लास को 2013 में मुतारिफ कराया गया था, लेकिन ज्यादा कीमत और राजदारी से मुतल्लिक खदशात के बाइस ये मंसूबा चंद बरसों में खत्म हो गया था। गूगल अब ऐसे वर्जन पर भी काम कर रहा है जिसमें लेंस के अंदर डिस्प्ले होगा और सारिफ को तहरीरी मालूमात, तर्जुमा और दीगर डाटा बराह रास्त नजर आएगा। ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात साल के आखिर में मुतवक्के हैं। उधर मुकाबले की कंपनी मेटा पहले ही स्मार्ट चश्मों की मार्केट में मौजूद है। इसके मेटा स्मार्ट ग्लासेस में कैमरा, स्पीकर और मसनूई ज़हानत की सहूलत भी मौजूद है। ये चश्मे मतन का तर्जुमा, मनाजर की शिनाख्त और सवालात के जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। खास तौर पर नाबीना या कम बसारत रखने वाले अफराद के लिए इन्हें मुफीद करार दिया जा रहा है। ताहम राजदारी के खदशात अब भी मौजूद हैं। नाकिदीन का कहना है कि अवामी मुकामात पर इन चश्मों के जरिए लोगों की वीडियोस बनाना आसान हो जाता है और कई बार मुतासर अफराद को इसका इल्म बाद में होता है। Nishta's confirmation. I have prepared your order for the Nitro Cold Brew from Coupa Cafe. Would you like to confirm? Yes, please. And add a tip for 20%. We saw how glasses work on your phone, but what about when they attach to your watch to give you a glanceable display? बरसगीर की तारीख में अगर किसी एक पहलवान ने अपनी ताकत, मेहनत और नाकाबिल शिकस्त अज़म से एक दास्तान रकम की तो वो गुलाम हुसैन उर्फ गामा पहलवान थे, जिन्हें दुनिया रुस्तम ज़मा के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी सिर्फ कुश्ती के दाव पेच की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, रियाजत और अज़म की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हैरान कर देती है। गामा पहलवान 22 मई 1878 को रियासत दतिया में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल अजीज खुद भी पहलवान थे, लेकिन गामा अभी बचपन ही में थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी तरबियत मामू ईदा पहलवान और बाद अज़ां उस्ताद माधु सिंह की निगरानी में हुई। कम उम्री से ही उनमें गैर मामूली सलाहियत नुमाया थी। रिवायत है कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने सैकड़ों पहलवानों के मुकाबले में सबसे ज्यादा बैठकें लगाकर सबको हैरान कर दिया था। गामा की जिंदगी का असल राज उनकी गैर मामूली वर्जिश थी। वो रोजाना हजारों डंड और बैठकें लगाते, मीलों दौड़ते और भारी पत्थर उठाते थे। कहा जाता है कि वो दिन के 15 घंटे तक जिस्मानी मुशक्कत करते थे। उनकी खुराक भी उसी मयार की थी, जिसमें दूध, घी, यखनी, मुर्गे, बादाम और फल शामिल होते थे। बड़े सगीर में गामा ने एक के बाद बड़े पहलवान को शिकस्त देकर अपनी शोहरत कायम की।
गुलाम मोहिउद्दीन हुसैन बख्श मुल्तानी और खसूसन रहीम सुल्तानी वाला के साथ उनके मुकाबले कुश्ती की तारीख का हिस्सा बन गए। गामा खुद कहा करते थे कि अगर कोई उनका हकीकी हरीफ था तो वो रहीम बख्श थे। 1910 में गामा लंदन गए, जहां उन्होंने आलमी पहलवानों को खुला चैलेंज दे दिया। यही वो मौका था जब उनका सामना पोलैंड के आलमी शोहरत याफ्ता ज़बिश्को से हुआ। पहले मुकाबले में ज़बिश्को ने मुसलसल दिफाई अंदाज अपनाया और कुश्ती बेनतीजा रही, लेकिन दोबारा मुकाबले के दिन वो मैदान में ही ना आए और गामा फातेह करार पाए। फिर 28 जनवरी 1928 को पटियाला में वो तारीखी मुकाबला हुआ, जिसे देखने के लिए हजारों लोग जमा हुए। 18 वर्ष बाद दोबारा आमने सामने आने वाले गामा और ज़बिश्को के इस मार्के का फैसला सिर्फ चंद लम्हों में हो गया। गामा ने झपट कर ज़बिश्को को जमीन पर गिरा दिया और रुस्तम में जमा होने की अपनी हैसियत एक बार फिर साबित कर दी। बाद में वो खुद कहा करते थे, जिसने घड़ी देखी वो कुश्ती ना देख सका। गामा पूरी जिंदगी नाकाबिले शिकस्त रहे। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों मुकाबले लड़े, लेकिन कभी हारे नहीं। तकसीम हिंद के बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए। बुढ़ापे और बीमारी ने उन्हें कमजोर जरूर किया, मगर उनका मामूल और वकार आखिर वक्त तक कायम रहा। 23 मई 1960 की सुबह फजर से पहले गामा ने पानी पिया और अपनी बेटी से कहा, अब जाकर सो जाओ, मैं मजीद किसी को बेआराम नहीं करूंगा। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। चंद लम्हों बाद बर्रे सगीर का ये अजीम पहलवान हमेशा के लिए खामोश हो गया। गामा लाहौर में दरबार पीर मक्की के करीब आसूदाए खाक हैं। वो चले गए, मगर रुस्तम जमा की दास्तान आज भी जिंदा है। एक ऐसे इंसान की दास्तान जिसने कभी चित होना नहीं सीखा। और अब सुनिए वसतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात, जिसका उन्वान है कि ये लोग पैदा ही क्यों होते हैं। आखिर इसमें हैरत और दुख क्यों कि देखो यार, इज्जत माब चीफ जस्टिस हुसैन नकी जैसे जय्यद सहाफ़ी और कलमकार से वाकिफ नहीं। मालूम होने के बाद कम से कम चीफ जस्टिस ने माजरत तो कर ली। यहाँ तो मालूम लोगों पे उनके खूनी रिश्तों और रियासती और गैर रियासती अशराफिया ने वो एहसानात किए कि मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। हबीब जालिब के जिसके लिए अयूब खान से नवाज शरीफ तक हर किसी का ख्वाब रहा कि या तो ये कमबख्त चुप हो जाए या बिक जाए या फिर मर जाए, पर जालिब ना चुप हुआ ना फ़रोख्त हुआ भी तो मरने के बाद कि उसके अजीज़ों ने अना के कैदी जालिब के नाम को ATM मशीन में बदल डाला कि जिसमें कभी पैसे होते हैं अक्सर नहीं होते। और जालिब मरने के बाद दोबारा मर गया होगा जब अपना ये शेर शहबाज शरीफ का ट्रेडमार्क बनते देखा होगा, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। फिल्म जबरू की कंपोजिशन दमादम मस्त कलंदर पर नूर जहां से मीका सिंह तक किस किस ने धमाल न डलवाया। इस कंपोजिशन का खालिक मास्टर आशिक हुसैन 1.5 बरस पहले लाहौर के भाटी गेट के बाजार हकीमा में फाका मस्त मर गया। अभी 3 हफ्ते पहले एक भले मानस वफाकी वजीर ने फ़ोन किया कि आपने एक बार मास्टर आशिक हुसैन का जिक्र किया था, उनका एड्रेस दे दें, हुकूमत कुछ मदद करना चाहती है। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में किसी ने उनके सेक्रेटरी बशीर रियाज से तस्करा किया कि उर्दू के कहानीकार और सहाफ़ी नईम आरवी और पाकिस्तान के वाहिद सहाफ़ती मौर्रिख़ ज़मीर नियाज़ी मुश्किल में हैं। दोनों को ज़कात फंड से 50-50 हज़ार रुपये के चेक जारी कर दिए गए। ज़मीर नियाज़ी ने शुक्रिया के साथ चेक वापस कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में ज़मीर नियाज़ी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाख रुपए का चेक मिला, मगर इससे पहले सिंध हुकूमत ने 6 अखबारात की इशाअत पे पाबंदी लगा दी। ज़मीर नियाज़ी ने एवार्ड और चेक लौटा दिया। फहमीदा रियाज जब 7 बरस की खुद साख्ता जलावतनी काट के दिल्ली से वतन वापस आईं तो बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत ने उन्हें नेशनल बुक फाउंडेशन का चेयरपर्सन नामजद कर दिया। अगले वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने आते ही बेनज़ीर के दौर में की गई तकर्रियाँ मनसूख करते हुए भरी असम्बली में कहा, इस औरत ने भारतीय एजेंटों को नौकरियां दी। कई बरस बाद नारा लगा कि मोदी का जो यार है गद्दार है। सुना है पिछले हफ्ते फहमीदा रियाज का हालत इलालत में लाहौर में इंतकाल हुआ तो मुतअद्दिद शायरों और अदीबों और सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने सदमे की ताब न लाते हुए फहमीदा की अज़मत को तहरीरी सलाम किया। इन खिराज तहसीनियों में 90 की दहाई के एक मुदीर साहब भी शामिल हैं जिन्होंने उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी और सिंधी में रवां फहमीदा को
5,000 روپے پہ رکھنے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ فی الحال مترجم کی آسامی نہیں۔ جدید اردو ناول، تھیٹر اور ٹی وی کا بڑا آدمی، ٹیچر اور بھٹو کا دوست ڈاکٹر انور سجاد ان دنوں لاہور میں بسبب علالت گوشہ نشین ہے۔ سنا ہے ایک اخباری ادارہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ باقی منتظر ہیں کہ کس روز ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لندن کی ایک مسجد میں تعینات امام مسجد نے بدروحوں سے نجات کے لیے علاج کے نام پر کس طرح برسوں تک کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال اور ریپ کیا۔ سنیے تفصیلات آج کے ZBC ریڈز میں سمرا فاطمہ سے۔ مشرقی لندن کی ایک مسجد میں تعینات امام مسجد عبدالحلیم خان کم عمر لڑکیوں اور ان کے والدین سے کہا کرتے تھے کہ انہیں بدروحوں سے نجات کے لیے علاج کی ضرورت ہے، اور علاج کے نام پر لڑکیوں پر جنسی حملوں کے بعد وہ انہیں خبردار کرتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو علاج کے اثرات ختم ہو جائیں گے، انہیں بد دعا لگ جائے گی یا کالے جادو کے ذریعے انہیں اور ان کے خاندان والوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ سلسلہ بغیر کسی کو پتہ چلے کیسے چلتا رہا، اور آخر ان جرائم سے پردہ اٹھا کیسے اور انہیں سزا کیسے ہوئی؟ سنیے پوری تفصیلات آج BBC ریڈز میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آریہ یہ ایک متاثرہ کا فرضی نام ہے۔ ان کی عمر محض 13 سال تھی جب ایک مسجد کے پیش امام نے انہیں علاج کے نام پر جنسی طور پر ہراساں کیا۔ آریہ بتاتی ہیں، میں واقعی سمجھتی تھی کہ ان کے پاس سپر نیچرل یعنی مافوق الفطرت طاقتیں ہیں۔ مجھے دھمکایا گیا کہ اگر میں نے کبھی اس بدسلوکی کے بارے میں کسی سے بات کی تو میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کچھ بہت برا ہوگا، اور اس سب سے گزرنے والی آریہ اکیلی نہیں تھی۔ عبدالحلیم خان نے انہی ہتھ کنڈوں کے ذریعے برسوں تک 7 خواتین اور لڑکیوں کو نشانہ بنایا۔ ان کی سب سے کم عمر متاثرہ لڑکی کی عمر صرف 12 سال تھی۔ لڑکیوں سے ملاقات کے دوران وہ خود کو جن یعنی ایک مافوق الفطرت شے ظاہر کرتے ہوئے ان کے ساتھ ریپ کرتے یا ان پر جنسی حملے کرتے تھے۔ اس کام کے لیے وہ ایسی گاڑیوں کا انتخاب کرتے تھے جن کے شیشے کالے یعنی ٹنٹڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک متاثرہ لڑکی کو فون بھی دیا تھا تاکہ وہ ان سے مستقبل میں رابطہ رکھ سکیں۔ ایک اور لڑکی کو انہوں نے اپنے گھر کے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے باہر نکل کر ان سے ملنے کی ترغیب بھی دی۔ آریہ کی والدہ نے ہی انہیں اس امام سے ملوایا تھا کیونکہ اسکول میں وہ کچھ مسائل سے دوچار ہونے لگی تھیں۔ ان کی والدہ کو امید تھی کہ امام مسجد انہیں کوئی مشورہ دیں گے۔ جب وہ ملے تو عبدالحلیم خان نے آریہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ آریہ کے بقول انہوں نے اسی وقت مجھے غیر مناسب انداز سے چھوا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے کہا گاڑی کی کھڑکی پر ابھی دستک ہوگی، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں نے وہ دستک سنی تھی، لیکن میں صرف 13 سال کی تھی اور بہت خوفزدہ تھی۔ 54 سالہ عبدالحلیم خان کو ان ہولناک جرائم پر اب عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس میں کم از کم 20 سال قید شامل ہے۔ ان پر ریپ کے 9 الزامات سمیت جنسی حملوں اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے متعدد الزامات ثابت ہوئے۔ ان کے متاثرین میں مقامی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی 7 لڑکیاں شامل تھیں۔ عبدالحلیم خان نے سن 2004 سے 2015 کے درمیان ان جرائم کا ارتکاب کیا اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے متاثرین کو خاموش رکھا۔ پولیس کو سن 2018 میں ان کے جرائم کا علم اس وقت ہوا جب ان کی جانب سے نشانہ بنائی گئی سب سے کم عمر کی متاثرہ لڑکی نے اپنے اسکول کے ڈاکٹر کو اس بدسلوکی کے بارے میں بتایا۔ حالانکہ اس کے بعد بھی ان پر فرد جرم عائد ہونے میں مزید 5 سال لگ گئے۔ BBC نے عبدالحلیم خان کی 2 متاثرین سے ان کے تجربات کے بارے میں بات کی۔ فرح یہ ایک دیگر متاثرہ کا فرضی نام ہے۔ وہ بچپن میں عبدالحلیم خان سے اس وقت ملی جب خان نے ان کی والدہ کو قائل کیا کہ فرح کو علاج کی ضرورت ہے۔ فرح کہتی ہیں کہ اس نے میرے خاندان کی سادگی کا فائدہ اٹھایا۔ فرح کہتی ہیں کہ وہ کہانیاں گڑھتے تھے، ایسی کہانیاں کہ میں مافوق الفطرت چیزوں کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، تمہیں تحفظ کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے۔ بعد میں خان نے فرح پر متعدد جنسی حملے کیے اور انہیں بتایا کہ یہ علاج کا حصہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بدسلوکی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مگر میں نے خود سے کہا کہ یہ غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں چھوا جانا چاہیے۔ میں بہت الجھن میں تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اپنے اہل خانہ کو بتایا تو وہ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ فرح کہتی ہیں کہ میں نے کچھ برسوں بعد اپنے والدین کو اس بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے اپنے خاندان نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ جن لوگوں سے مجھے تحفظ اور حمایت کی توقع تھی انہوں نے منہ موڑ لیا، مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا اور وہ آج تک ایسا ہی کرتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کھو گئی ہوں۔
میں اپنی شناخت پر سوال اٹھاتی ہوں کہ میں کون ہوں، میں کہاں بلونگ کرتی ہوں۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو کس طرح دھمکایا گیا اور ذہنی طور پر قابو میں رکھا گیا۔ اس کیس پر کام کرنے والی کراؤن پروسیکیوشن سروس کی وکیل میلیسا گارنر کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے کریئر میں اس نوعیت کا کیس نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ عبدالحلیم خان نے متاثرین کو دھمکایا اور ذہنی طور پر قابو میں رکھا تاکہ وہ یہ یقین رکھیں کہ وہ کسی چیز کے زیر اثر ہیں۔ یہ انتہائی چونکا دینے والا معاملہ تھا، اور جب آپ متاثرین لڑکیوں کی گواہی سنتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے۔ برسٹل یونیورسٹی میں کرمنالوجی کی پروفیسر اور اس کیس میں ماہر گواہ پروفیسر عائشہ کے گل کہتی ہیں کہ اگرچہ اسلامی تعلیمات کالے جادو کی حمایت نہیں کرتی، پھر بھی اس کا نمایاں ثقافتی اثر موجود ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ متاثرین کو اس بات پر یقین دلایا گیا کہ صرف عبدالحلیم خان ہی انہیں اور ان کے خاندانوں کو تباہ کن سپر نیچرل نقصان سے بچا سکتے ہیں، اور ان کے کنٹرول سے نکلنے کی صورت میں انہیں سنگین خطرات لاحق ہوں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ مسلم خواتین کے لیے جنسی تشدد کے بارے میں بات کرنا شدید خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کے بقول بہت سی خواتین کو باور کرایا جاتا ہے کہ وہ نجی معاملات پر خاندان سے باہر بات نہ کریں کیونکہ یہ ان کے لیے باعث شرم ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا مجرم کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مذہبی اختیار، روحانی خوف اور ثقافتی کمزوری کا یہ امتراج اس کیس کو بہت خاص بناتا ہے۔ فرح کہتی ہیں کہ انہوں نے عام بچپن نہیں گزارا بلکہ انہوں نے برداشت کرنا سیکھا ہے۔ وہ دیگر متاثرین کو پیغام دیتی ہیں کہ ان کی ویلیو اس بات سے متعین نہیں ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ اکیلی نہیں ہیں۔ اگرچہ عالیہ کی عمر بہت کم تھی جب ان پر پہلی بار جنسی حملہ ہوا، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو اس بارے میں پہلی بار اس وقت بتایا جب ان کی عمر 20 سال تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے نے ان کی زندگی پر دیر پا اثر ڈالا۔ ساتھ ہی کہتی ہیں کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو میں بطور انسان کیسی ہوتی۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔